Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, कहाँ तक हम लोगों ने कर ली है? कौन सी एक्सरसाइज तक कर ली है? Sir, today we will start the question number third of We are doing exercise 1D, right? 1D कर रहे हैं. yes, sir. And in this we have to do question 3. Am I right? Yes, sir. We will start question number 3 too. Okay. So let us start question 3. हाँ जी बेटा, बोर्ड की बेटा. Excuse me, sir. Yes. Sir, this time for maths, I made a copy. I asked Ahuja that you can make a copy in maths. Sorry. Tell me again. This time I have made it a school copy, school Hindi copy for maths. Is it okay? I have made a register. कोई बात नहीं बेटा, कुछ भी बना लीजिए आप, चाहे स्कूल को भी बना लीजिए या रजिस्टर बना लीजिए. Okay, sir. No problem. Thank you. So, question number 3. Question 3. वो सही दिख रहा है. Okay. Question number 3. So this is verify the following. First part. The similar type of question we have already done yesterday. इसी टाइप का है, तो इसमें भी LHS RHS दोनों आप अलग-अलग सॉल्व करेंगे. What is this? This is the verification of associative law. क्या बोलते हैं? Associative law. So it is the verification of associative law. 5/7. 5/7 multiplied by 12/30. Multiplied by 7/18. Okay, this is the LHS. First of all, you simplify the brackets. Simplify by यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 5/60. 7 into 13 is 91. Now you open the brackets. After multiplying, open the brackets. And then 7 into 18. इसमें आप देखिए क्या ये तो सिंपलीफाई हो रहा है. Yes. 91 को 7 से काटेंगे 30 दे देगा. Here this is divisible by 6. Then से यहाँ पे काटेंगे 3. Okay. 10 into 1 is 10 and 30 into 3 is 39. 10/39 is the answer. Understood? LHS. Now let us solve the RHS. RHS में भी यही करना है, बट यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट्स कहीं और लगे हुए हैं. The last two numbers को पहले मल्टीप्लाई करना है. Okay. So this is 5/7 into 12/13 into
7 सेम ही है, ऐसा ही है बिल्कुल सेम, बट यहाँ पर क्या है, इधर फर्स्ट टू नंबर्स को ब्रैकेट में डाल देते हैं, यहाँ पर सेकंड और थर्ड नंबर को ब्रैकेट में डाला है। ठीक, तो आपको पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ओके, सो दिस इज डिविजिबल बाय 6, 2 बचेगा 6 से काट के, एंड दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 6 काट के 3, so 5 on 7 divided by 2 into 7 14, 13 into 3 is 39. Okay, 5 upon 7 into 14 9. Excuse me, sir. Yes. Sir, I have to go somewhere. Can leave the meeting? Okay, fine. So Sir, I have to go to the Gurdwara for Okay. Chapli. Yes, sir. 7 को 7 से कट किया 1 आता है। Can I? Yes, yes. 14 को 7 से कट किया 2 आता है। Okay, sir. Bye, sir. Thank you. 5 into 2 is 10, and 1 into 39 is 39. Answer is again 39. दोनों ही केसेस, sorry, दोनों केसेस में आंसर क्या है? 10 upon 39. Understood, all of you? So in the last you can write hence verified. Have you all understood? Yes, sir. Please wait. Excuse me, sir. Yes. Sir, what we have to do after this first part? Sorry, what? The which part Sir, you are after. do the Sir, second okay, sir. I am doing the second part. do the second part on your own, all of you. Okay, sir. क्वेश्चन 4 अपने आप करो, फिलअप्स करने जितने करिए अपने आप। तो फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन 4 का, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कम्यूटेटिव लॉ लगेगा, एंड थर्ड और फोर्थ पार्ट में एसोसिएटिव लॉ लगेगा। आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4 इज -23 upon 17. Sir. Yes. Sir, in question 3, we have done cos part. Then what we have to do? Second part of Okay, sir. question 3. Second part करिए जल्दी। Sir, I have done the fourth question and the second part of third question.
Okay, let us discuss the question, all the parts of question 4. First part, minus 23 upon 17 is the answer. Second part, the answer is minus 38. 38. Third part, the answer Sir, is do we yes. sir, do we have to do the question 4 in notebook or we can do it in The book. book? Write the answers in the book. Okay, sir. Third part, the answer is 15 upon 7. And fourth part of question 4, the answer is 25 upon minus 16. 25 upon minus 16. सेम ऐसे ही क्वेश्चन 4 5 भी आप बुक में करेंगे. क्वेश्चन 5 रेसिप्रोकल करना है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल. सो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? 25 अपॉन 13. सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा माइनस 12 अपॉन 17. थर्ड पार्ट द आंसर इज माइनस 24 अपॉन 7. फोर्थ पार्ट द आंसर इज 1 अपॉन 18. 1 upon 18. Yes. अब इसमें सिक्स्थ पार्ट देखो बेटा. सिक्स्थ पार्ट में पहले आप माइनस से माइनस काट सकते हैं. सिक्स्थ पार्ट देखिए, माइनस से माइनस कट जाएगा. आंसर क्या आएगा? 5 अपॉन 3. Yes, sir. Okay. Seventh part, reciprocal of minus 1 is minus 1 itself. minus 1 का reciprocal minus 1 ही. ये 1 upon minus 1 बन जाएगा, which is also equal to minus 1. ठीक है. Eighth part, 0 upon 2 का reciprocal क्या होगा? 2 upon 0, but it is not defined. 2 upon 0 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो defined हो. इस भी नंबर को अब जब हम 0 से डिवाइड करते हैं, that thing is not defined. इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. Does not exist ऐसा भी लिख सकते हैं. Does not exist या फिर not defined. Any number when divided by 0 is not defined. eighth पार्ट का आंसर हो गया does not exist या फिर not defined. Okay. Ninth part the answer is minus 5 upon 2. And eighth part, sorry, 10th part, last part, the answer is minus 8. Minus 8 upon. Minus 8 upon 1 is equal to minus 8. Okay. Sir, question 5 we have to do in book. Yes. Question 5 is to be done in the book. Okay. अब आपने सिक्स्थ पार्ट में बता रहा हूँ. सिक्स्थ पार्ट में आप देख रहे हैं that it is written. Just a minute. Let me arrange for a duster. Which question? Excuse me, sir. Yes. We have to do which question right now? Now we will do question 6. We will explain something in question Okay, sir. 6.
So question 6 first part में बताया it is to be done in the book only. Question 6 first part यहाँ पर लिखा है 5/8 whole to the power minus 1. आपने एक्सपोनेंट्स चैप्टर पढ़ा था क्लास 7 में, याद है? Do you remember exponents in class 7? नहीं याद है? कोई बात नहीं, एक्सपोनेंट्स में आपने सीखा है whenever there is a negative power जब भी नेगेटिव होती है, we do the reciprocal of the base, do the reciprocal of the base and make the power. क्या करते हैं? बेस का रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव कर देते हैं, पावर को पॉजिटिव कर देते हैं. इट मींस 8/5 इज द आंसर. 8/5. तो डायरेक्टली आपको क्या कर सकते हैं, बस यहाँ पर रेसिप्रोकल करना है बस. सो राइट द आंसर इन द बुक ओनली, डायरेक्टली राइट दिस एज 8/5. फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 8/5. सेकंड पार्ट द आंसर इज -9/4. थर्ड पार्ट द आंसर इज 1/-7 या फिर -1/7, कुछ भी लिख सकते हैं. -1/7 थर्ड पार्ट. फोर्थ पार्ट -3. आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट इज -3. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन 7 फिर से वही आ गया क्वेश्चन 3 की तरह, सेम वही चीज वेरीफाई करवा रहे हैं. क्या नया है इसमें? Sir, please slide. नहीं, थोड़ा सा लगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको वेरीफाई क्वेश्चन 7 में. they are asking you to verify the distributive law. क्वेश्चन 7. चलो एक पार्ट करते हैं. This question 7 first part फिर से इसमें LHS RHS LHS 3/7 into 5/6 plus 12/13. 3/7 into 5/6 plus 12/13. LHS में लिखा है ये. अब इसमें क्या करना है आपको? फर्स्ट वी विल ऐड these two numbers. ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे. What is the LCM? LCM is 78. 78 is the LCM. Now 13 into 5 is 65 plus 6 into 12 is 72. Okay. So 65 plus 72, 3/7 into 65 plus 72, 137, 78. Now you have to multiply these two. Well, यहाँ पर इस तरह की this which you can simplify here. Yes, simplify कर सकते हैं. 3 को basis 78 2 6 26. ये नंबर 7 से divisible है? No, I don't think so. 6 7 9. So answer is 137 upon 26 into 7. 218. So 137 upon 182 is the answer. Understood? LHS solve कर लिया हमने. Have you all understood the LHS?
sir. Yes, Very sir. good. Let's now solve RHS. ये कौन सा लॉ वेरीफाई करवाना है, आप चाहें तो लिख सकते हैं your copies, will write your copies. कौन सा लॉ वेरीफाई कराया है? Distributive law. Okay, this is distributive law. So now the RHS 3/7 into 5/6. Plus 3/7 into 12/13. Answer will be same. देखिए what is the difference between LHS and RHS में difference क्या दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हमने पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करा, फिर ऐड करके जो आया उसके बाद 3/7 को मल्टीप्लाई। इधर क्या कर रहे हैं हम 3/7 को 5/6 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3/7 को 12/13 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले 3/7 को दोनों टर्म से अलग-अलग मल्टीप्लाई करें, लेकिन यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करा। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों जगह से जो आएगा उसको ऐड कर लेंगे, यू विल सी दैट द आंसर विल बी सेम। देखो here 3 और 6 को काट के 2 आ गए, 5/14 प्लस यहाँ पर तो सिंपलीफाई हो गया 36/91, 36/91, ठीक है। Now the LCM of these two 14 और 91 का LCM क्या होगा? It is 182. The LCM of 14 and 91 is 182. 182 divided by 14 क्या बचेगा? 13. Yes, 13 into 5 65 plus 182 divided by 91 is 2. 2 into 36 Into is 2. 72. 65 plus 72 137 upon 182. Is the LHS equal to RHS? क्या LHS RHS equal are? Yes. Yes, sir. Therefore, hence we can say that the distributive law is verified. Understood? So इसका आप second part homework में करेंगे. We will do the second part of question 7. Question 2 में जरा बुक में लिखिए सारे बच्चे। Question 2 में कौन सा लॉ वेरीफाई कराया था हमने? बुक में लिख लो इसको। कौन सा लॉ वेरीफाई कराया है क्वेश्चन 2 में? मैंने बोला था नाम। कौन सी प्रॉपर्टी थी? कौन सी प्रॉपर्टी थी? It was I think कम्यूटेटिव लॉ। बुक में लिखिए कम्यूटेटिव लॉ क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में it was कम्यूटेटिव लॉ। certain क्वेश्चन Commutative 3 law. में 3 में था एसोसिएटिव लॉ। लिख लीजिए उसको एसोसिएटिव लॉ क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 7 में कौन सा लॉ है? दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। distributive law. हाँ Sir, in which question? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। In which question? सेवेंथ क्वेश्चन में क्या कौन सा लॉ यूज हो रहा है सारे पार्ट्स में? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करना। Distributive law. ओके Okay, sir. चलिए अब यहाँ पर मेरे को हमको क्वेश्चन 8 जरा देखिए बुक में आंसर्स लिखना है। सारे पार्ट्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं वो आपको मेंशन करना है। जरा फर्स्ट पार्ट में ध्यान से देख करके बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन 8 फर्स्ट पार्ट आप लोग आंसर करें। कौन सी प्रॉपर्टी है? क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन 2। क्वेश्चन The multiplicative inverse. क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट
और क्वेश्चन 2 के जो भी मैंने नोट कराए हैं, कौन सा लॉ नोट कराया था क्वेश्चन 2 में? कम्यूटेटिव। हाँ, उसको देखिए, सारे पार्ट्स क्वेश्चन 2 के क्वेश्चन 8 के फर्स्ट पार्ट जैसे हैं या नहीं है? यस सर। तो लिखिए उसको कम्यूटेटिव लॉ, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट किससे मैच हो रहा है देखिए। क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट सर डिस्ट्रीब्यूटिव। नहीं, क्वेश्चन 3 से मैच हो रहा है। क्वेश्चन 3 में कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ। क्वेश्चन 4, सॉरी थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 8 का थर्ड पार्ट, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो क्वेश्चन 7 में किया था हमने। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 8 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, देन फोर्थ पार्ट, सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अरे यार। Fourth part of question 8 is multiplicative identity. आइडेंटिटी। Fifth part बताओ। Fifth part, सर आई थिंक दिस इज आल्सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। this is multiplicative inverse. यहाँ पर हम नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हम किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। तो ये क्या प्रॉपर्टी कहलाती है? दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। When a number is multiplied by its reciprocal, the answer is 1. Okay. फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट में डिफरेंस क्या है? फोर्थ पार्ट में हमें बताया गया था एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ, फोर्थ पार्ट है एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट है नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड सिक्स्थ पार्ट बताओ। दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इसमें क्या होता है? नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। A number when multiplied by 0 is always equal to 0. Okay. 0. Ninth question. The product of a rational number and its reciprocal. अभी बात करी है हमने बिल्कुल। सर कम्यूटेटिव लॉ। अरे fill in the blank, question 9 first part क्या आएगा? एक रेशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? 1 मिलता है। The answer is 1, first part. Number when multiplied by its reciprocal is 1, first part. Second part, 0 has dash reciprocal, 0 has no reciprocal, 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमने क्वेश्चन 5 के 8th पार्ट में भी देखा था, वहां पर भी लिखा था क्वेश्चन 5 का 8th पार्ट। यस सर। 0 has no reciprocal. The numbers dash and dash are their own reciprocals. कौन से दो नंबर्स अपने खुद के रेसिप्रोकल होते हैं? 0 and 1 and -1, 1 and -1 दोनों का रेसिप्रोकल
वही होता है जो नंबर्स खुद होते हैं। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है एंड -1 का रेसिप्रोकल -1. सो द आंसर इज 1 and -1. 1 and -1. Fourth part. Zero is dash the reciprocal of any number. Sir, not. क्या किसी नंबर का रेसिप्रोकल 0 होता है? No, sir. Not the reciprocal of any number. 0 is not the reciprocal of. Fifth part. The reciprocal of A, where A is not equal to 0, is 1 upon A. A. Fifth part का आंसर हो गया 1 upon A. The reciprocal of 1 upon A is equal to A. Sixth part का आंसर हो जाएगा A. धीरे धीरे करके एक एक करके बच्चे मीटिंग छोड़ के भाग रहे हैं. ये बच्चे जो भाग रहे हैं इनको एब्सेंट लगा दो. फिफ्थ पार्ट का आंसर हुआ 1 upon A एंड सिक्स्थ पार्ट का आंसर हो गया A. A. Seventh part, the reciprocal of a positive rational number is always positive. Positive. पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही होता है और नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव ही होता है. तो सेवेंथ पार्ट का आंसर पॉजिटिव, एट पार्ट का आंसर नेगेटिव. Negative. एक्सरसाइज कंप्लीट. बताइए कोई डाउट है तो बताइए. Sir, no doubt.